Hello friends. So let's start with the टेक्स्ट सम्स. टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसके जर्नल एंट्रीज के सम्स से आज हम शुरू करने वाले हैं. तो लेट्स without wasting any such time, let's start doing the sums. Question number 5 of your textbook, page number 102. From the following transaction, write journal and the books of Pranjal. प्रांजल के जर्नल में हमें लिखना है. So let's have a title. टाइटल तो हमें पता ही है एंड इट इज़ नाउ मतलब कॉमन कि हमें कैसे टाइटल करना है, टाइटल लिखना है. वी ऑल नो दैट, राइट? So let's do it quickly. Doing it for one time more and then it's up to you. आप किस तरीके से लिखते हो. Journal entries in the books of Pranjal. This is question number 5, huh? So date, particulars, LF, debit rupees and credit rupees, right? The basic format that we used to follow. So let's, without wasting much time, let's start doing the sum. सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? इंट्रोड्यूस्ड 10,000 कैश एंड कमेंस बिजनेस. So owner is bringing in cash. So first cash account debit to capital account. How much it is? 10,000. So 10,000 and 10,000, correct? चलो then next. गुड्स ऑफ 5,000 परचेज्ड ऑन कैश. हमने गुड्स बाय करे ऑन कैश. तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000. चलो फिर नेक्स्ट. गुड्स ऑफ 8,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन, राइट? राजन के पास से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे. चलो देन purchase account debit as goods are coming in and Rajan is the giver. So to Rajan's account 8,000 and 8,000. Is it completely clear? चलो फिर नेक्स्ट. बहुत ही ईजी से सम्स है, एज सच बिगिनिंग वाले सम्स है एंड वी हैव ऑलरेडी डन सो मैनी सम्स फ्रॉम वर्कशीट, सो वी आर नाउ कॉन्फिडेंट इनफ. चलो. तो गुड्स ऑफ 2,000 गिवन फॉर डोनेशन. हमने डोनेशन के लिए गुड्स दिए. गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स. तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट as goods are going out other than sales. How much it is? 2,000. So 2,000 and 2,000, correct. फिर नेक्स्ट. गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ 3,000. हमने शिवानी को ऑर्डर दिया है, अभी कुछ भी हुआ नहीं है, गुड्स आए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने शिवानी को ऑर्डर दिया है, दैट्स ऑल. सो शिवानी को ऑर्डर दिया है. 5th नंबर का ट्रांजेक्शन. लेट मी राइट इट डाउन. नो एंट्री. चलो फिर एज इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? वी नो दैट वेरी वेल. नाउ शिवानी हैज डिस्पैच द गुड्स एज पर ऑर्डर. ऑर्डर कितने का दिया था? 3,000 का, करेक्ट. तो हमने शिवानी के पास से गुड्स बाय करे 3,000 के. सो लेट्स राइट इट डाउन. परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानीज अकाउंट 3,000 एंड 3,000. चलो फिर नेक्स्ट. पेड 2,500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा यानी कि ड्रॉइंग्स हुआ, राइट? सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500. 7th. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500 and 2,500, right?
and at the end we'll make total and the question is done. Let's move ahead with question number 6. Chalo. Write journal entries in the following transaction in the books of Shubham. So journal entries in the books of Shubham will be my title. Journal entries in the books of Shubham. Correct. Let's begin without wasting any much time. Start doing the sums. January 1st के sums है, so January 1 will be in my date का column, right? चलो, so introduce goods of 10,000, cash of 15,000, furniture of 5,000, debtors of 10,000 and commence with business. कितनी सारी चीज़ें वो लेके आया, right? Goods लाया, cash लाया, furniture लाया, debtors लाया, right? So let's write it down. Goods of 10,000, cash of 15, furniture of 5 and debtors of 10. So let's write stock account debit, cash account debit, furniture account debit, debtors account debit. As everything is my asset and everything is coming in debit, what comes in? So debtors account debit. 2. Who is bringing in the same owner, and anything that the owner is bringing in to start or to run the business is known as capital. So let me see the amounts. 10, 15, 5 and 10. So 10,000, 15,000, 5,000 and 10,000. So 40,000. Easy. Let's move ahead. 12th date को पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन अ बिजनेस. पर्सनली वो जो भी करे खुद का खुद भले ही बिक जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. बिजनेस में कितने आए? 50,000 आए. सो वी आर कंसर्न विद दैट 50,000 रुपीज ओनली, राइट? सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 50,000. सो कैश अकाउंट डेबिट to capital account 50,000. चलो फिर next 1,000 withdrawn from bank for personal use. बैंक से उठाए पर personal use के लिए उठाए, right? So what will be the journal entry? Drawings account debit और बैंक का बैलेंस ही डिक्रीज हुआ, और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो तो क्या करते हैं हम? बैंक को क्रेडिट करते हैं. सो टू बैंक अकाउंट हाउ मच इट इज? 1,000. सो 1,000 and 1,000. Correct. Then next income tax refund of 500 of owner of sole proprietor deposited with bank account of business. ओनर का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड आया जो बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया गया, ऐसा बोला गया है. पर्सनल कुछ भी हो और ओनर वो बिजनेस में डलवाए तो दैट इज नोन एज व्हाट अगेन? कैपिटल, राइट? सो व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री ओवर हियर? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 500. Bank account debit to capital account 500 and 500. चलो then next from business goods of 1,000 and cash of 400 are withdrawn for personal use. goods भी withdraw करे और cash भी withdraw करी. goods 1,000 के, cash 400 की for personal use. Anything that the owner is withdrawing from the business for his or her personal use, that is known as drawings. So drawings account debit, goods are going out other than sales, so purchase account credit, and cash is going out, so cash account credit because it is my asset only, and credit what goes out. So let's write it down. It is 20th drawings account debit 1,400 to purchase account 1,000
टू कैश अकाउंट 400 इजी अगेन। चलो फिर नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। डॉटर का ट्रैवलिंग का खर्चा हमने किया बिजनेस में से, सो अगेन इट इज ड्राइंग्स, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 एंड फिर नेक्स्ट, फर्नीचर ऑफ 2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। फर्नीचर बाय करा, गुड, पर कहाँ से? गंगा फर्नीचर मार्ट से, ओके फाइन। पर क्या? फॉर हाउस, हमने घर के लिए फर्नीचर बाय करा है, राइट? सो ड्राइंग्स विदड्रॉ, आई मीन ड्राइंग्स हमने करे हैं, दैट टू फॉर हाउस, मतलब हमने फर्नीचर बाय करा दैट टू फॉर हाउस, तो हमें क्या एंट्री करनी है? ड्राइंग्स हुए वो तो क्लियर है, राइट? So my entry will be what? Drawings account debit to Ganga Furniture Mart, right? Ganga Furniture Mart in 2000. So let's record 28th. Drawings account debit to Ganga Furniture Mart account. and 2000, correct? Easy. चलो फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 पेड बाय चेक। अगेन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम विड्रॉल्स किए हैं, सो 31st को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेड बाय चेक बोला गया है। कितना है भाई? 500, सो लेट्स राइट इट डाउन, 100 एंड 500। इज इट कंप्लीटली फाइन? कंप्लीटली ऑल राइट, सही से समझ में आ रहा है। लेट्स मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या दिया हुआ? ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ 20,000 बोरोड फ्रॉम राम। हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट हुई फंड्स की, तो हमने राम के पास से 20,000 के एडिशनल फंड बोरो करे, राइट? सो व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री? कैश इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू 12% राम्स लोन अकाउंट 20,000 करे। चलो लेट्स राइट इट डाउन। एक मिनट पहले तो हम टाइटल देख ले, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुष्कर। So question number 7, journal entries in the books of Pushkar। चलो लेट्स डू इट। कौन सा डेट पे? February 1st। तो February 1st को कैश अकाउंट डेबिट टू 12% राम्स लोन अकाउंट। सी हमने बोरो करे हैं, तो हमारे लिए ये क्या हुआ? इट इज़ अ लायबिलिटी, राम इज द गिवर, तो राम की लोन को क्रेडिट किया, एंड आज नहीं तो कल वी आर सपोज टू पे द सेम, सो इट इज अवर लायबिलिटी। एंड व्हाट आई हैव ऑलरेडी बीन टीचिंग यू सिंस पास्ट 2-3 सेशंस, दैट वॉट एवर पेएबल आर credited and receivables are debited, right? If you remember, so here cash account debit as cash is coming in and we are supposed to pay to Ram, so Ram's loan account credit 20,000 and 20,000. चलो फिर नेक्स्ट, 8,000 लेंट टू लक्ष्मण एज इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। हमने लक्ष्मण को लेंट किया, मानी हमने लक्ष्मण को लोन दी, हमने लक्ष्मण को पैसे दिए, राइट? सो कैश इज गोइंग आउट, किसको जा रहे हैं? लक्ष्मण को जा रहे हैं। सो व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री? 8% लक्ष्मण's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। सो लेट्स डू इट। 8% लक्ष्मण's लोन, some may write advanced लोन एडवांस्ड, क्योंकि हमने दिया हुआ है, राइट? डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ कितने दिए हैं भाई? 8,000 दिए हैं, सो 1,000 एंड 8,000 completely all right। चलो let's move ahead। Received cash of 800 for loan lent to Bharat
भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट, भरत के पास से हमें कुछ 800 एंड 200 मिले हैं, इतना समझ में आए हमें। तो वन थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, एक तो भरत की लोन के पैसे मिले हैं और दूसरा 200 इंटरेस्ट मिला है। सो लेट्स राइट इट डाउन। कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू, you may write Bharat's account or you may write Bharat's loan account, it is all good, no issues। Bharat's loan account 800, क्योंकि भरत की लोन के पैसे हमने उसको दे दिए, राइट। ओह एक मिनट, भरत की लोन के पैसे हमें मिले ले, आई गॉट जस्ट अ मिनट, रिसीव्ड कैश, या सो भरत की लोन के पैसे हमें मिले, राइट। सो भरत लोन अकाउंट एंड 200 इंटरेस्ट के मिले। आई थॉट सो कि भाई 2 इंटरेस्ट अकाउंट 100, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम हुई और मुझे अलग से दिखानी ही पड़ेगी, राइट। चलो फिर आगे बढ़े। 5000 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट ऑफ 400, हमने सीता के पास से लोन ली हुई थी, उसके पैसे हमने उसको रिटर्न कर दिए विद इंटरेस्ट ऑफ ₹400। तो टोटल 5000 एंड 400 की कैश गई मेरे हाथ से। चलो लेट्स पास एन एंट्री, सीताज अकाउंट और सीताज लोन अकाउंट, एनीथिंग इज फाइन। डेबिट 5000, इंटरेस्ट हमने पे करा है, हमारा खर्चा हुआ, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 5004। लेट्स मूव अहेड। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹200 फॉर लोन लैंड टू कौशल, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाउ मच, कितना था, 200 एंड 2। चलो लेट्स मूव अहेड। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, राम के पास से लोन हमने ऑब्टेन करी थी, बोरो करी थी 12% की लोन, राइट। सो यहाँ पे 1 मंथ की कैसे लोन हमें मिला, आई मीन कैसे पता चलेगा, समझना इधर। 20,000 इंटू 12%, यू कैन से 2400। Now can I write like this, 2400 मेरे को मिला, पर ये 12% इज पर एनम, कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये होता है कि पूरे साल का इंटरेस्ट है। अगर 12 महीनों का 2400, तो एक महीने का कितना, ऐसा वी कैन डू। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2400 इंटू 1/12 कम्स टू 200। इज इट ईजी, समझ में आई। ये 200 आपको स्क्रीन पे शायद विजिबल ना हो, लेट मी राइट इट ओवर हियर। इजी, समझ में आया। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, 15 नंबर का ट्रांजेक्शन, अ गुड ट्रांजेक्शन, आई एम डूइंग इट ओवर हियर ओनली। राम के पास से हमने जो लोन बोरो करी थी, दैट इज 20,000 रुपीज़ की लोन हमने उसके पास से बोरो करी थी सबसे पहले ट्रांजेक्शन में, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, करेक्ट। उसका मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, एंड दिस 12% इंडिकेट्स अ ईयर का इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट ये इंडिकेट करता है। पर हाँ, यहाँ पे क्या बोला है कि हमें एक महीने का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे, ध्यान यहाँ पे 20,000 इंटू 12% कम्स टू 2400, राइट। पर दैट इज ऑफ ईयर, फॉर होल ईयर। सो कैन आई राइट लाइक दिस, फॉर 12 months it is 2400, then for 1 month how much, 2400 into 1 divided by 12 comes to 200, correct, that we are paying to him as an interest. So my entry will be interest account debit to cash account 200 and 200. Is it completely clear? This was a good transaction, you can mark it good. 75 became receivable for interest on loan of Lakshman. 75 receivable हुए, अभी मिले नहीं, यार receivable हुए, अभी मिले नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लक्ष्मण इज गोइंग टू पे मी द मनी, लक्ष्मण ने अभी पे करे नहीं है, पर लक्ष्मण पे करने वाला है, रिसीवेबल हुआ है, राइट। सो व्हाट विल बी माय एंट्री ओवर हियर, which date, 18th date, लक्ष्मण्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज वो मेरे को पे करने वाला है, रिसीवेबल अमाउंट हुई, टू इंटरेस्ट रिसीवेबल
रादर आई कैन इवन राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। लक्ष्मण की लोन वो डेफिनेटली समझ में आया, कितना था 75 एंड इज इट कम्प्लीटली क्लियर, समझ में आया, क्योंकि लक्ष्मण के पास से मेरे को पैसे मिलने वाले, अभी मिले नहीं है। कम्प्लीटली फाइन। सो हमने यहाँ पे कुछ 3 सम्स करे आज के सेशन में, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ वॉट एवर वी हैव डन टुडे। थैंक यू।